Hello all, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Zaidas Patel College of Technology. Today we are going to learn file handling and the topic name is text file reading and writing. Last time we had seen that when we're dealing with file, there are two types of files which should know about that. First is text file and second one is binary file, which is already discussed in last lectures. First, text file containing the ASCII code or digits, alphabets or symbols. Text files are the normal text txt extensions, and we can easily create text files using any simple text editor such as Notepad or WordPad. And the second file is binary file, which we will discuss later. Functions which are used when we working with text files. C provides various types of functions which are used when we working with text files, or we are working with reading and writing or creating a file. Uh, there are six types of functions which are used when we working with text files, and two types of functions are used when we reading and writing binary files. First functions is appscanf and second one is appprintf. Appscanf functions is used when we want to scan or read any text file. Printf functions is used when we want to write any text files. Fgets functions is used when we want to read any string, and appputs functions is used to write a string in a file. Fgets functions is used when we want to read one by one characters, and appputs functions is used when we want to write one by one characters. Each and every functions has different functionalities which we use to perform a specific type of operations like reading and writing for the particular purpose. Prototypes of functions. The prototypes of the functions which we'll discuss in last slide are appscanf. appscanf के अंदर हम लोग क्या करेंगे? appscanf takes it takes three arguments. First is file pointer, second one is constant characters which defines the format. वो क्या डिफाइन करेगा? फॉर्मेट डिफाइन करेगा, मतलब कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है. आइदर इट इज स्ट्रिंग. इफ इट इज स्ट्रिंग देन परसेंटेज एस इज यूज. अगर आप उसको इंटीजर में स्टोर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टोर इन इंटीजर देन यू हैव टू यूज परसेंटेज डी और परसेंटेज आई. if you want to store float value then it will use the percentage f, percentage lf for double, and so on. And let's specify the variable name from which we want to write or read a value. Next, second is getC. getC functions is used to read one by one characters, and it takes only one argument, and which is file string. मतलब आपको सिर्फ एक फाइल पॉइंटर पास करना पड़ेगा जब हम कॉल करते हैं तब. थर्ड है fgetc functions, जो टोटल तीन कैरेक्टर्स तीन पैरामीटर्स आपके पास दिए. टेक्स थ्री पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है. सेकंड वन इज एन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच यू वांट टू रीड. मतलब एन आपको क्या स्पेसिफाई करेगा, आपको कितने कैरेक्टर्स रीड करवाने हैं अप्रोक्सीमेटली. And then last one is a file pointer which is fp.
फोर्थ फंक्शन इज appprintf functions. appprintf functions जो है वो बेसिकली यूज होगा फाइल को राइट करने के लिए. appprintf functions is used if you want to write into a text files. It takes 3 arguments. First, file stream, file pointer, it means file pointer. Second is a constant characters format, and third is list. मतलब कि फर्स्ट जो है वो क्या क्या स्पेसिफाई करेगा आपको कौन से फाइल के अंदर आपको फाइल पॉइंटर के अंदर आपको राइट करवाना है. सेकंड, आपको कौन से फॉर्मेट में करवाना है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो बताएगा किस फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करवाना है. अगर आपको स्ट्रिंग में करवाना है तो आपको %s लिखना पड़ेगा. अगर आपको इंटीजर में करवाना है तो %d यूज कर सकते हो या %i यूज कर सकते हो. और अगर आपको डेटा पर फ्लोट में डेटा स्टोर करवाना है तो %f कर सकते हो. डबल में करना है तो %ld यूज कर सकते हो. एंड लिस्ट क्या स्पेसिफाई करता है कि जिस वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करेगा जिसके अंडर से हमको डेटा रिट्राइव करके फाइल में राइट करना है. फिफ्थ वन इज fputc which is used to write a file कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स. मतलब आपको अगर आपको उससे 1 by 1 कैरेक्टर्स राइट करवाना है तो आप ये यूज कर सकते हो. इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर टू पैरामीटर्स इज यूज व्हेन वी कॉल द फंक्शन fputc फंक्शंस. फर्स्ट पैरामीटर इज इंटीजर c जो क्या स्पेसिफाई करेगा कितने कैरेक्टर्स आपको जो कौन कितने कैरेक्टर्स फर्स्ट आपको स्पेसिफाई करेगा कितने कैरेक्टर्स आपको राइट करवाना है. सेकंड क्या है स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम स्पेसिफाई करेगा. उसके बाद नेक्स्ट पुटसी फंक्शंस क्या स्पेसिफाई करेगा. पुटएस फंक्शंस जो है वो किसके लिए यूज होगा. बेसिकली इट इज यूज व्हेन वी वांट टू राइट अ फाइल्स स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग. अगर आपको स्ट्रिंग में अगर फाइल को राइट करवाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं ये फंक्शंस को, जिसके अंदर टोटल इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट इज कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स का आपको रीड करवाना राइट करवाना है वो. एंड द सेकंड जो है वो आपका फाइल पॉइंटर और स्ट्रिंग मतलब कि फाइल पॉइंटर जिस फाइल के अंदर आपको राइट करवाना है वो. नेक्स्ट हम लोग अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा किस तरीके से फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं. फर्स्ट वॉइड मेन एंड हम लोग फर्स्ट क्रिएट करेंगे फाइल पॉइंटर जिसका नाम हम लोग रखेंगे पॉइंटर fp. उसके बाद एक टेक्स्ट ले लेते हैं कैरेक्टर एरे 80 का. उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर i लिया है, क्लियर स्क्रीन यूज किया है एंड फाइल को ओपन किया है. यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए fopen फंक्शन यूज होगा. उसका टोटल 2 पैरामीटर यूज होंगे. फर्स्ट फाइल का नाम एंड सेकंड जो है वो रीडिंग मोड होगा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. fopen फंक्शंस टोटल 2 पैरामीटर यूज होते हैं. पहला होता है फाइल का नाम एंड द सेकंड इज मोड. टोटल कितने टाइप के मोड रहते हैं वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे मैंने w यूज किया है मतलब ये फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा. नेक्स्ट हम लोग यूजर के पास इनपुट लेंगे printf करके एंड उसको स्टोर करवाएंगे गेटएस फंक्शंस के साथ बिकॉज ये स्ट्रिंग है. उसके बाद fputc फंक्शंस क्या करेगा फाइल को राइट करने के लिए यूज होगा. fputc फंक्शन वो किस फॉर्मेट में स्ट्रिंग राइट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट करेगा. और टेक्स्ट जो है वो जिसके अंदर वैल्यू स्टोर किया है जो भी मैं इनपुट दूंगा वो टेक्स्ट के अंदर स्टोर होगा और जो टेक्स्ट के अंदर जो स्टोर है वो किस में स्टोर राइट हो जाएगा उस फाइल में जो sample.txt नाम की फाइल है उसमें राइट हो जाएगा. उसके बाद मैंने इफ कंडीशन मैंने लगाई है इफ fp नॉट इक्वल टू नल देन इट विल डिस्प्ले स्ट्रिंग कॉपीड इनटू द टेक्स्ट फाइल. मतलब कि ये आपको बताएगा अगर स्ट्रिंग सक्सेसफुली कॉपी हो गई then it will display the string copied into the text file. If fp returns false then ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा. it will not display any type of message. and fclose फंक्शन किस लिए यूज होगा. fclose फंक्शन जो है वो फाइल पॉइंटर को क्लोज करने के लिए यूज होगा. एंड getEdge फंक्शंस आप जानते ही हैं. नेक्स्ट सेकेंड प्रोग्राम एक एग्जांपल लिया है मैंने एग्जांपल 2 है. वो एक छोटा सा एग्जांपल है बट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है. बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ चुका है. हाउ टू कॉपी वन फाइल टू अनदर फाइल. मतलब हम लोग एक फाइल में से दूसरे फाइल में किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं कंटेंट फाइल का कंटेंट.
तो उसके लिए हमें 2 फाइल पॉइंटर बनेंगे। मैंने पिछली बार जो लिया था प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर मैंने सिर्फ सिंगल fp लिया था, यहाँ पे मैंने fp1 भी लिया है। उसके बाद मैंने लिखा दूसरा एक वेरिएबल लिया इंटीजर ch, क्लियर स्क्रीन लिया है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया f ओपन फंक्शंस के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं और ये कौन कौन से बोर्ड में टोटल मैंने दो बार लिखा है एप ओपन ex लिखा है जो किसके लिए यूज होगा, फाइल को ओपन करने के लिए ex.txt लिखा हुआ है जो फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा, एंड fp1 लिखा है और w लिखा है और जो टेक्स्ट फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा। और मैंने इफ कंडीशन लगाई, अगर फाइल पॉइंटर fp नल मिला तो ये फाइल इज नॉट अवेलेबल ऐसा मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एक अब ch नाम का फंक्शन लिखा हुआ है ch इज इक्वल टू गेट c fp, मतलब ये 1 by 1 कैरेक्टर्स जो है वो ch के अंदर आता रहेगा और कंटिन्यूसली 1 by 1 आता रहेगा, और जब तक फाइल एंड नहीं हो जाता तब तक ch के अंदर ये एक एक कैरेक्टर्स आता जाएगा और वो हम लोग पुटसी फंक्शंस के थ्रू फाइल में राइट करते जाएंगे। यहाँ पर टोटल 2 फंक्शंस यूज किए गए मैंने। एक पहला फंक्शन है कौन सा है गेट सी, जो बेसिकली किसके लिए यूज होगा, फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज होगा। एंड द सेकंड वन इज पुटसी फंक्शंस विच इज यूज टू राइटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल। और उसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई है कब तक ये लूप घूमता रहेगा, जब तक जो कैरेक्टर जो आपको मिल नहीं जाएगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक EOF नहीं मिल जाता है। EOF क्या आइडेंटिफाई करता है ये आपको बताएगा। इस आइडेंटिफाई दैट फाइल जो है वो एंड ऑफ फाइल हो गया है कि नहीं हो गया, मतलब फाइल खत्म हो गई कि नहीं हुई। जब तक फाइल खत्म नहीं आती तब तक ये वाइल लूप जो है वो घूमता रहेगा। एंड देन I close using the fclose functions। टोटल 2 पॉइंटर मैंने यूज किया था fclose का, fp and fp1 वो मैंने क्लोज कर दिया, एंड देन गेटएच फंक्शंस मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है जिसके थ्रू मतलब मैं किसी भी फाइल को एक फाइल में से दूसरी फाइल में मैं कॉपी कर सकता हूँ, एक फाइल में से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपको बताएगा कि किस तरीके से किसी भी फाइल में से कंटेंट डिस्प्ले कर सकता हूं मैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैंने लिखा है इसके अंदर फाइल पॉइंटर किस लिए यूज है मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने जानबूझकर एक ch नाम का एक लिया है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिया है, एंड देन fp फंक्शन फाइल पॉइंटर fp लिया है। fp एक वेरिएबल है, फाइल वेरिएबल फाइल पॉइंटर के लिए यूज होगा, और फाइल को मैंने रीडिंग मोड में ओपन किया है। और अगर सेम वे मैंने पिछले एग्जांपल में सेम इसी तरीके से लिखवा मतलब मैंने आपको बताया था कि fp जो है वो अगर नल हुआ तो फाइल इज नॉट अवेलेबल ऐसा मैसेज आ जाएगा। और ये वाइल लूप जो है वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक इसको एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल जाता। और जब तक ये फाइल एंड ऑफ द मिल जाएगा तब ये स्टॉप हो जाएगा, और वो क्या करेगा, सिंगल 1 by 1 कैरेक्टर्स को रीड करेगा एंड देन डिस्प्ले करेगा, रीड करेगा एंड डिस्प्ले करेगा। और जैसे ही आपका डिस्प्ले हो जाएगा तो वो एंड ऑफ द फाइल उनको मिल जाएगा, एक कैरेक्टर मिल जाएगा, और जैसे ही फाइल एंड ऑफ द फाइल मिल जाएगा ये जो रीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड देन fclose फंक्शंस के थ्रू मैं फाइल पॉइंटर को क्लोज कर दूंगा। How to read and write content of the file using fprintf and fscanf functions। ये दोनों functions बहुत important है। जब हम लोग फाइल को read and write करवाते हैं तो ये दोनों functions बहुत ही important है। जब आप किसी भी text फाइल को read and write करना चाहते हो तो मोस्टली जो यूज होते हैं वो fprintf and fscanf ही यूज होंगे। जो जनरली उसकी जो सिंटैक्स है वो सेम printf scanf जैसी है, सिवाय एक फाइल पॉइंटर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम का डेमोस्ट्रेट करते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि किस तरीके से ये यूज होगा। उसके लिए मैंने फर्स्ट वॉइड में लिखा है और फाइल पॉइंटर मैंने लिखा हुआ है, एंड कैरेक्टर मैंने टोटल कितने वेरिएबल, टोटल मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। कैरेक्टर नेम और एरे, कैरेक्टर नेम एरे लिया है 20 का, एज लिया है इंटीजर एज, फ्लोट सैलरी ली है, एंड देन क्लियर स्क्रीन
स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद फाइल पॉइंटर लिया है, अगर फाइल पॉइंटर abc.txt फाइल के अंदर राइटिंग बोर्ड में मैंने ओपन करके रखी है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई इफ फाइल पॉइंटर इफ एप पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अगर फाइल पॉइंटर नल हुआ तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड रिटर्न हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और अगर मान लो फाइल एग्जिस्ट है तो यूजर के पास से इनपुट मांगेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है printf एंटर योर नेम, यूजर के पास इनपुट मांगेगा एंड स्कैन करके किस में स्टोर कर जाएगा, किस में स्टोर कर देगा, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और वेरिएबल जो है वो मैं यूजिंग द एप printf फंक्शंस फाइल पॉइंटर के थ्रू मैं उस फाइल के अंदर हम लोगों ने जो लिखा था abc.txt नाम की फाइल है उसके अंदर मैं राइट कर दूंगा। तो एप printf का काम क्या है, यहाँ पे एप printf का काम ये ही है कि यहाँ पे से आपको क्या करके देगा, एक सिंपल सा राइट करके देगा फाइल के अंदर। जो पॉइंटेड कौन पॉइंट करेगा, fptr जो पॉइंट करेगा उस फाइल के अंदर आपको राइट करके दे देगा। सेम एज मैंने जैसे नेम मैंने राइट करवाया, सेम मैं यूजर के पास से एज इनपुट मांगूंगा, एंटर द एज, और उसको मैं स्टोर करवा दूंगा %d करके %h करके स्कैनअप के थ्रू मैं उसको स्कैन करके स्टोर करवा दूंगा एज नाम के वेरिएबल के अंदर। और जैसे मैंने printf फंक्शन के थ्रू मैंने एज को राइट करवाया था, सॉरी नेम को राइट करवाया था फाइल के अंदर, सेम वे उसी तरह के एप printf फंक्शंस के थ्रू मैं राइट करवाऊंगा, ठीक है, एज को। सेम वे मैं यूजर के पास वापस एज खत्म हो जाने के बाद मैं सैलरी इनपुट मांगूंगा, इनपुट करवाने के बाद %f के थ्रू मैं सैलरी को स्टोर करवाऊंगा। और अभी नेक्स्ट जो है वापस मैं किस में राइट करवा दूंगा उसको, जो हमारी फाइल पॉइंटर जो राइट करवाना abc.txt फाइल है उसमें मैं राइट करवा दूंगा। एंड एट लास्ट मैं क्या कर दूंगा, फाइल पॉइंटर को क्लोज कर दूंगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो यूजर के पास इनपुट लेगा, टोटल 3 इनपुट लेगा। एक तो नाम होगा, उसका नाम, उसके बाद उसका एज, एंड सेकंड जो है उसके सैलरी है। और तीनों के तीनों डिटेल्स मैंने अलग रखे हैं ताकि मैं थोड़ा डेमोस्ट्रेट अच्छी तरीके से कर पाऊँ। पहले मैंने नेम लिया है जो डेमोस्ट्रेट करेगा कैरेक्टर को किस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं। सेकंड मैंने क्या लिया है, एज लिया है जो डेमोस्ट्रेट करता है कि मैं किस तरीके से एज को मैं एज को राइट कर सकता हूँ, मतलब क्या, हाउ टू राइट एज इन अ टेक्स्ट फाइल। एंड लास्ट में मैंने सैलरी को राइट करवाया है जो डेमोस्ट्रेट करवाता है मैं किस तरीके से फ्लोट को मैं राइट कर सकता हूँ। एंड लास्ट में मैंने क्या करवा दिया, एफ क्लोज फंक्शन से मैंने फाइल पॉइंटर को क्लोज करवा दिया है, ठीक है। तो मैंने पूरा आज के सेशंस के अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको कि पहले तो कितने टाइप की फाइल्स हैं वो मैंने बताया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शंस 6 फंक्शंस देखे, कौन कौन से फंक्शन देखे, एप printf, एप scanf, एप putc, एप getc, फिर उसके बाद एप getx एंड एप getc। ये फंक्शन सारे हमने देख लिए जो बेसिकली फाइल को टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में लूंगा कि हाउ टू राइट बाइनरी फाइल, हाउ टू राइट रीड एंड राइट बाइनरी फाइल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा। तो आज जो मैंने प्रोग्राम करवाया है वो प्रोग्राम आप एक बार चेक कर लीजिए तो रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरीके से प्रोग्राम रीड एंड राइट वाले एग्जाम में आते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर ठीक आपके पास है ही, ग्रुप में मैंने दिया ही है। अगर फिर भी आपके पास नंबर नहीं है तो मेरा नंबर है 9979202104 एंड मेरा ईमेल आईडी है vipul.taylor@hotmail.com। आप मोबाइल नंबर या तो फिर मेरा ईमेल आईडी पे से अगर कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।